Good morning, children. Today we are continuing with the chapter number 2 and we'll start with the topic that is your logic gates. Now, what do you mean by logic gates? Logic gates means the gate is a circuit which takes one or more input and generates the output. It's a diagrammatic representation of my input values and give me the output values. We have three types of logic gates with us, actually which are in use. They are your NOT gate, AND gate and OR gate, right? And three more gates are there with us, but they are the combination of these three gates only. When we say that a gate which is formed, logic gate which is formed with the combination of AND, NOT and OR, they all are called as my universal gates. Universal gates means what are the universal gates? Universal gates are the combination of AND, NOT, OR, and the example for your universal gate is your NAND, NOR and exclusive OR, right? Now here we have the first one, that is your NOT gate. Now what do you mean by NOT gate? It takes only a single input, that is the first condition. Second is your whatever the value you will give in true will go to the false, and if you will give the false value, input the false value, then it will go for the true value, right? Now if I'm taking my X as an input, then the NOT gate is represented by sleeping triangle with cherry, right? Sleeping triangle with cherry, and gives me, if it is X, then it will give me X complement, and if I place X complement here, it will give me X. We can say see it from the truth table of the logic gate. That is your X is my one variable containing two values 0 and 1, and X complement will become 1 and 0, right? So this is called as my NOT gate. NOT gate make sure that always works for a single variable only, and वो हमेशा फॉर्म करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, इसीलिए इसको नेगेशन भी बोलते हैं. साइन ऑफ नेगेशन इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड. सेकेंड वन इज योर AND gate. AND gate works with two or more than two variables, right? They can be 3, they can be 4, but it always works for more than two variables, right? Suppose we have two variables X and Y. If I want to make the logic gate of my AND gate, then I'll prepare it with dot D. It is represented by D sign, fine. And D sign का जो symbol होता है, that is your dot. इसको याद रखने के लिए बेस्ट वे क्या होता है, AND is represented by dot, और dot का symbol क्या हो गया, D. तो इसलिए जब भी आप दो वेरिएबल्स के बीच में ये D साइन बनाएंगे, it will form your X dot Y, right? So where this sign represent the dot means AND. So X मेरा first input हो गया, Y बीच में आ गया dot, and second input मेरा क्या हो गया, Y. So it will form me the output value as X dot Y. And X, Y again two वेरिएबल है, तो 2 0 2 0 2 1 हो जाएंगे. Y के पास 0 1 0 1 0 आ जाएगा. देन उसके बाद X डॉट Y निकालूंगी, तो रूल्स ऑफ AND वाले मुझे याद है. दैट इज अगर हम इसे कहें 0 डॉट 0 है तो आउटपुट वैल्यू 0 होगी, 0 डॉट 1 है तो इट इज अगेन 0, 1 डॉट 0 है, इट इज अगेन 0, एंड 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1. सो आई मेड द सेम रूल्स ओवर हियर एंड गिव यू द AND gate here, fine. And the third one is your, again I have prepared the logic gate and for three variables also, that is X Y Z भी लेकर के मैंने एक बार बना के दिखा दिया, that this gate can be for two or more than two variables, and it will form your X dot Y dot Z. Next is your OR gate. OR gate का मतलब क्या होता है? OR means it is represented by plus sign. OR को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट ऑल्सो वर्क्स फॉर टू और मोर देन टू वेरिएबल्स. अगर सपोज मेरा फर्स्ट वेरिएबल X है, सेकंड वेरिएबल Y है, मतलब ये दोनों मेरे वेरिएबल, लेफ्ट साइड जो वेरिएबल हम देते हैं दे आर कॉल्ड एज माय इनपुट वैल्यूज, एंड वो मुझे रिवर्ट बैक जब मेरा गेट फॉर्मेशन करते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो मेरी आउटपुट वैल्यू क्या फॉर्म होगी वो मुझे शो करता है. ये मेरा X हो गया, ये मेरा Y हो गया, इन दोनों के बीच में एक कर्व ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग. कर्व ट्राइंगल विल गिव मी द वैल्यू एज X प्लस Y. अब X प्लस Y दे रहा है, तो मेरे पास दो वेरिएबल है, तो कितना हो गया, 2 0 2 1 1 0 1 1, और उसके बाद X प्लस Y निकालूंगी, तो देन आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस. हाउ कम इट दिस, दैट 0 प्लस 0 रूल फॉर ऑल इज योर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन 1 होता है. दीज आर द रूल्स फॉर योर OR, right? So these are the three basic actually logic gates. सर्किट डायग्राम फॉर प्रिपेयरिंग एनी अदर लॉजिक गेट, राइट? कोई भी लॉजिक गेट बनाने के लिए मुझे बेसिक 3 लॉजिक गेट्स पता होने चाहिए, जिसमें मेन चीज याद रखने वाली 2 हैं. Number 1 the symbol, and number 2 is the how many variables required for making that,
लॉजिक गेट। अगर एंड गेट है तो रूल क्या था, नंबर 1 इट वर्क्स ओनली फॉर वन वेरिएबल एंड इट विल टेक द सिंबल एज कॉम्प्लीमेंट साइन, राइट। एंड द सेकंड वन इज योर एंड में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स होंगे या 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट साइन, और इसलिए वो फॉर्म क्या करेगा, एक्स डॉट वाई। और अगर और है तो ये भी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए वर्क करता है, और इसका साइन क्या होता है आपके पास, प्लस। इसके अंदर स्लीपिंग ट्रायंगल विद चेरी होता है, इसके अंदर डी फॉर डॉट होता है, डी साइन बनता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इसमें कर्व ट्रायंगल बनता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 गेट्स और आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नैंड गेट, एक को हम बोलते हैं नॉर गेट, और एक को हम बोलते हैं एक्स और गेट। वेयर NAND gate is a combination of again 2, as the name is indicating it is NAND. NAND का मतलब क्या हो गया हमारे पास, that is your not and. N stands for not and and. अगर मैंने not and बोला और ये अगर and है तो it means it will work for two or more than 2 variables. तो 2 वेरिएबल, अगर एक x है दूसरा y है, तो उसने बोला नॉट एंड। नॉट एंड का मतलब हो गया पहले मेरे को एंड बनाना है और उसके बाद मुझे क्या बनाना है, उसका नॉट बनाना है। इट विल वर्क लाइक दिस एंड इट विल गिव मी द वैल्यू, ये x डॉट आ गया, यहाँ पर x डॉट ये y आ गया, तो मीन्स ये आउटपुट वैल्यू मेरी क्या होगी, x डॉट y। अब ये मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, अगर ये कॉम्प्लीमेंट बन गया तो ये क्या हो गया, x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट। नाउ द सेम थिंग, ये तो हो गया जब हमने इसको इंडिविजुअली ब्रेक करके बनाया। मुझे लेकिन बनाना किस फॉर्म में, नैंड फॉर्म में बनाना है। अगर मुझे इसे नैंड फॉर्म में बनाना है देन आई विल मेक इट, ये मेरा x, ये मेरा y, और बीच में मैंने क्या बनाया, d बनाया, और उसके आगे एक चैरी लगा दीजिए, तो ये भी मुझे क्या फॉर्म करके देगा, x y, ये डॉट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये फॉर्म क्या करेगा, x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस विल बिकम माय नैंड गेट, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है, नॉर गेट आता है, जहां पे नॉर गेट का मतलब होता है नॉट ऑल। नॉट ऑल का मतलब क्या हो गया, जो और नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, एक x है एक y, 2 वेरिएबल्स के लिए वर्क करेगा, 2 या 2 से ज्यादा के लिए। अब पहले क्या बनाएगा, और का क्या बनाना है, मुझे नॉट बनाना है एंड गिव मी, ये बनना मेरा x, ये मेरा y, बीच में आया प्लस साइन, ये बन गई x प्लस वाई। अब ये क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। बट ये एक्सपेंशन फॉर्म में था, मुझे चाहिए नॉर फॉर्म में चाहिए। अगर ये भी मुझे नॉर फॉर्म में चाहिए, मुझे क्या लेना पड़ेगा, x, मुझे क्या लेना पड़ेगा, y, कर्व ट्रायंगल, आगे क्या लगा देंगे, चेरी, देन इट विल बिकम एज x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। जहां पे ये x है, ये प्लस हो गया, ये y हो गया, और ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ गया मेरे पास, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। दिस विल बिकम माय नॉर। ये तो हो गया डायग्रामेटिकली हम लोग नैंड और नॉर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे नैंड और नॉर को ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी, 1 is x, another is y। अगर ये x y है तो 2 0 2 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। उसने कहा इट इज नॉट एंड। नॉट एंड का मतलब हो गया, मुझे पहले क्या निकालना है, x डॉट y निकालना है, x डॉट y। अब ये x डॉट y निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 1। अब मेरे को इसका होल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, x डॉट y का होल, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 1 1 एंड देन 0। इट मीन्स आपका नैंड गेट किसके लिए वर्क करता है, हमेशा तब वर्क करेगा जब उसकी दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, ट्रू वैल्यूज होंगी। ये ट्रू वैल्यूज के लिए हमेशा क्या कंसीडर होता है, फॉल्स। इवन वैल्यूज कह लो, जब हमारे पास आपकी जो आउटपुट इनपुट वैल्यूज हैं, अगर वो इवन होंगी तो वो आपको रिजल्टेंट वैल्यू क्या देगा, 0, और रेस्ट वैल्यूज मेरी क्या कहलाएंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज 1, राइट। सो दैट बिकम्स योर x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट। Same, I can do it for my NOR also. I'm having 2 variables. One is x, another is y. This is 0 0 1 1. This is 0 1 0 1. And then if I'll say x plus y, तो मेरा रूल क्या हो गया, 0 1 1 1. And अगर मैंने कहा x plus y का होल कॉम्प्लीमेंट तो रिवर्स हो जाएगा, ये मेरे सारे 0 हो जाएंगे। अब इस केस में वो कहता है जब वो दोनों फॉल्स वैल्यूज होंगी, इनपुट वैल्यूज दोनों फॉल्स होंगी, तो मेरी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी, रेस्ट ऑल मेरी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। मतलब ये वर्किंग आपको मेनली ध्यान रखनी है कि अगर हम नैंड गेट बनाते हैं तो नैंड गेट में कंपल्सरी है कि आपकी दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज आपकी इवन होंगी केवल तभी वो आपको आउटपुट वैल्यू 0 देगा, रेस्ट ऑल वैल्यूज आपकी 1 हो जाएगी। और इस केस में जब वो दोनों इनपुट वैल्यूज को आपका 0 लेगा, केवल तभी वो वैल्यू को क्या लेता है, 1 लेता है, अदरवाइज ऑल वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज अ 0। Next we have the XOR gate, where XOR stands for the exclusive OR. Exclusive OR is represented by the plus sign as it is an OR but circular form में। अब इसके अंदर होता क्या है,
अगर आपकी दोनों वैल्यूज इनपुट वैल्यूज आपकी फॉल्स हो या दोनों आपकी इनपुट वैल्यूज ट्रू हो, केवल तभी आपका जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, रेस्ट ऑल वैल्यूज विल कम एज 1। फाइन, मतलब इसके अंदर कंपल्सरी है दैट ऑल इनपुट वैल्यूज एंड ऑल आउटपुट वैल्यूज शुड बी ट्रू, इधर ऑल शुड बी ट्रू, इधर ऑल शुड बी फॉल्स। केवल तभी वो आपको आउटपुट वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न द वैल्यू एज 1। फाइन ना, अब वो ये कहता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ब्रेक चाहिए, एक्सक्लूसिव है ना, तो और से एक कट चाहिए। और से कट कैसे लेते हैं, एक इनपुट वैल्यू x आई, दूसरी इनपुट वैल्यू मेरी y आ गई। अब मैंने इसका एक कर्व बनाया, आर्क टाइप में एक कर्व बनाया, देन उसको ब्रेक करके मैंने अपना और सिंबल बनाया एंड देन मैंने ये रिप्रेजेंट करा, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, x प्लस वाई, विच इज नॉट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये है कि इट इज मेंशन्ड इन योर बुक्स, सो आई एम जस्ट गिविंग द एक्सप्लेनेशन फॉर इट, दैट्स इट। फाइन, अब इसके ऊपर बेस्ड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म होता पेपर में आता है, राइट, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, 2 फॉर्म्स में ये क्वेश्चन आता है, ईदर द क्वेश्चन कैन बी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड द सेकंड वन इज राइट द इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। अब इस केस में मुझे ड्रॉ करना है, मतलब मेरे पास एक एक्सप्रेशन बना हुआ है, मुझे इस एक्सप्रेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताना है कि ये डायग्राम में कैसे आएगा, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अब गेट्स को बनाने के लिए, जैसे आप मैथ्स के अंदर आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन हो, तो आप क्या करते हो, उस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए बोर्डमास रूल फॉलो करते हो। बोर्डमास रूल होता है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। सेम वे अगर यहाँ पे मेरे पास एंड नॉट और तीनों एक साथ आ रहे हो और मुझे क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चाहिए। किसका चाहिए, लॉजिक गेट्स का। अब लॉजिक गेट्स का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, NAO, मतलब पहले वो नॉट को कंप्लीट करेगा, फिर वो एंड को, और फिर किसको करेगा, और को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज NAO। नाउ बोल सकते हैं, नैओ बोल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, राइट। आप कुछ भी बोल के इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं अपना ऊपर वाला ये एक्सप्रेशन देखूं, इफ आई सी माई एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर, ये दिया हुआ है मेरे पास A, अगर इसमें कोई साइन नहीं तो बीच में डॉट है, इसमें भी अगर कोई साइन नहीं है तो बीच में इसका मतलब डॉट हो गया। अब मेरे पास कॉम्प्लीमेंट B का आ रहा है, वो आई कीप ऑन डूइंग दैट, लेकिन पहले किसको लेना है मुझे, A डॉट B को, क्यों, क्योंकि पहले A एड आ रहा है। एंड किससे रिप्रेजेंट होता है, डॉट से, और किससे रिप्रेजेंट होता है, प्लस से। नॉट किससे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज विद द कॉम्प्लीमेंट से। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने पहले A का एक इनपुट वैल्यू A ले ली, सेकंड मैंने क्या लिया, B एक इनपुट वैल्यू ले ली, लेकिन इसका क्या था, कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बना दिया, स्लीपिंग ट्रायंगल विद चेन। अब इन दोनों के बीच में मेरा क्या बन रहा है, D फॉर डॉट बन रहा है, मैंने डॉट बनाया, ये एक आउटपुट निकला है। नेक्स्ट टाइम उसने क्या कहा, C कॉम्प्लीमेंट डॉट D, तो मुझे पहले इसे सॉल्व करना है। मैं बीच में पहले प्लस साइन को रिप्रेजेंट नहीं करूंगी, क्योंकि ऑर्डर एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पहले एंड आता है, बाद में और आता है। इसका मतलब मुझे इन दोनों को पहले बनाना है, फिर बीच में मेरे को क्या लेना, और लेना। अब मेरे को क्या चाहिए, C कॉम्प्लीमेंट D, तो ये मेरा बन गया C, ये C का क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया, ये मेरी C आ गई। देन उसके बाद इनपुट वाली मेरी क्या आ रही है, D आ रही है। इन दोनों के बीच में मुझे क्या बनाना था, अगेन D बनाना है। ये दो मेरी इनपुट वैल्यूज, ये आ गया A B कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया मेरा C कॉम्प्लीमेंट D। इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या बना हुआ, प्लस। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो आपकी आउटपुट रिजल्टेंट वाली होगी वो उसको हमेशा टर्न करके देते हैं, कभी भी स्ट्रेट नहीं लेते, राइट। टर्न करके आप क्या करेंगे, दोनों के बीच में कर्व ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से, एंड इट विल गिव मी द वैल्यू दैट इज योर A B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट D। इसको आप ये भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू थी किसके इक्वलेंट, फंक्शन f की, तो आप चाहें तो इसे f भी लिख सकते हैं, राइट। अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने डायग्राम बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां से लाइन जा रही है वहां से बैक करते हैं। ये मेरा प्लस साइन है, ये मेरा डॉट है, ये मेरा डॉट है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है, और ये भी मेरा कॉम्प्लीमेंट है। आई गो फॉर दिस इनपुट A, ये छोटा यहाँ पर लिख दीजिए A। अब ये क्या आ रहा है, बीच में डॉट, फिर उसके बाद ये क्या आ रहा है, B, और ये कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी क्या होगी, B कॉम्प्लीमेंट। अब ये रिजल्टेंट क्या निकला, A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया मेरा A डॉट B कॉम्प्लीमेंट। अगली बार मेरे पास यहाँ का मैं देखूं तो ये मेरा C का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये मैंने C कॉम्प्लीमेंट बना दिया, ये मेरा D हो गया, तो ये क्या बन गया मेरा C कॉम्प्लीमेंट D।
इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस। तो पहली वैल्यू मेरी क्या थी, दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस करके बीच में साइन आ गया, एंड देन क्या आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट बी। तो ये रिजल्टेंट वैल्यू मेरी, इसका मतलब मैंने जो डायग्राम बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट। ये तो हो गया हाउ टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम। अब अगर मान लो ये उल्टा होता, बजाय उसने सर्किट डायग्राम बनाने के लिए देने के, उसने सर्किट डायग्राम बना हुआ दे दिया और वो कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इट, आप इसका एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, राइट। तो एक्सप्रेशन निकालने का वे अभी अभी मैंने बताया, विल टेक एग्जांपल। लाइक यहाँ से बैक करें तो ये क्या बन रहा है मेरा u, अब यहाँ से बैक करें तो ये किसके ऊपर आ रहा है, v का, ये क्या बना कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरी क्या हो गई, v कॉम्प्लीमेंट आ गया, v कॉम्प्लीमेंट आ गया। बीच में क्या लग रहा है, डॉट, तो ये क्या हो गया, u v कॉम्प्लीमेंट। अगली बार ये लाइन जो आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम ऊपर से, दैट इज योर u से, तो ये u का कॉम्प्लीमेंट बन गया, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, u। अब ये मेरी वैल्यू किसके लिए, w के लिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट बन के ये क्या बन गया, w कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या आ गया, डॉट आ गया, तो ये क्या हो गया, u कॉम्प्लीमेंट w कॉम्प्लीमेंट, बीच में ये साइन किसका था, प्लस का। अब रिजल्टेंट वैल्यू क्या देगा, u v कॉम्प्लीमेंट प्लस u कॉम्प्लीमेंट w कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये राइट। आई वुड लाइक टू हैव वन मोर एग्जाम्पल टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देना चाहूंगी मैं। एंड व्हाट इज दैट, सपोज अगर आपके पास एक एग्जाम्पल, ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टिल आई एम टेकिंग इट हियर, दैट इज योर ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास ये होता और वो कहता है ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर दिस, तो मैं इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाती, पहले डॉट वैल्यूज दूंगी। अब डॉट वैल्यूज देने का मतलब ए डॉट बी चाहिए, ये मेरा ए आ गया, ये मेरा बी आ गया, दोनों के बीच में डॉट था, तो मैंने क्या डॉट के लिए क्या बना दिया, डी बना दिया। डी बनाने पर ये मुझे रिजल्टेंट में क्या दे रहा है कि इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, सो दैट बिकम्स ए डॉट बी, और ये क्या आ गया, ए डॉट बी। अब जब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लगाया तो ये वैल्यू मेरी क्या बन गई, ए बी का फुल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, बी सी के साथ, तो बी ऑलरेडी मेरा यहाँ है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी अगेन, मैं यहीं से एक वायर कनेक्शन ले लेती हूँ इनपुट वैल्यू के लिए, वो बी की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन सी नया लेना है मुझे, तो मैंने सी यहाँ से नया ले लिया, दैट इज दिस सी। और इन दोनों के बीच में मुझे क्या बनाना है, डी बनाना है, एंड आई गेट द वैल्यू एज अगेन कॉम्प्लीमेंट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ रहा है यहाँ से बी से, ये हो गया सी, ये डॉट, तो ये क्या बन गया, बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये सॉरी बी सी बन गया और ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये वैल्यू क्या होगी, बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब सी ए का होल कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ये मेरा सी आया ऊपर से, अब मुझे इसे लेके आना है, तो इंस्टेड ऑफ मैं दोबारा बनाने के, मैं ऊपर से ले आई, आई कैन टेक दिस वैल्यू लाइक दिस, एंड देन मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में डी एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया। ये तीन आउटपुट वैल्यूज मेरे पास निकल गई, ये सी की निकल आई, ये ए की आ गई, ये डॉट डल गया, एंड देन उसके बाद ये क्या हो गया, सी ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सी ए का होल कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। अब तीन में बना रहे हैं, तो तीन में क्या होता है, जब भी इनका टर्न देते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू टर्न होके आएगी, बीच वाली वैल्यू स्ट्रेट आएगी, और नीचे वाली वैल्यू भी टर्न करके आएगी, नहीं तो वो डायग्राम बहुत लेंदी बड़ा सा बन जाता है, जूम फॉर्म में बन जाता है, बड़ा अनटाइडी लगता है। तो इसको ट्विस्टेड फॉर्म में लेंगे, तो ये कर्व बनाएंगे, अब हमारे पास ये कर्व बन गया, एंड आई गेट द वैल्यू एज एफ, एफ इज इक्वल टू माय दिस वैल्यू। तो यहाँ एफ ना लिख के यू हैव टू राइट द कंप्लीट वैल्यू, दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट एनी ऑफ द डायग्राम विद योर लॉजिक सर्किट डायग्राम। फाइन। यहाँ पे सेकेंड वे क्या है, इसमें आप ए बी सी, यू कैन टेक ए, यू कैन टेक बी, यू कैन टेक सी। अब अगर उसने बोला ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए हो गया, यहाँ से मेरे पास बी आ गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट ये बन गया, और ये होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगली बार उसने क्या कहा, बी सी कॉम्प्लीमेंट, बी सी मतलब बी को यहाँ से लीजिए, ये इसी के लेवल में लेके आते हैं, सी की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, अब ये दोनों मेरी यहाँ बन गए, और आई कैन टेक दिस वैल्यू। अब मुझे सी ए बनाना है, तो सी मेरा यहाँ से आ जाएगा, ए आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर, ये बन गया, और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। चॉइस इज योर्स, आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाइए, आप वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, इट विल गिव द वैल्यू इन द सेम फॉर्म, मतलब आंसर आपका सेम वही निकलेगा। You can draw your logic circuit diagram like this, you can draw your logic circuit diagram like this. Choice is yours.